السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ نیولس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ وہ اپنی شکل سے خاصا غمگین نظر آ رہا تھا۔ گھر تک کا فاصلہ ہم نے خاموشی سے طے کیا۔ گھر پہنچ کر میں نے نیولس سے یہ سوال کر ہی ڈالا، کیا بات ہے نیولس، تم کچھ خاموش اور سنجیدہ سے ہو؟ یہ بات نہیں ہے یولیسس، بس میں یہ سوچ رہا تھا کہ انسان بعد اوقات کتنا بے حقیقت ہو جاتا ہے۔ ایگانوس نہ جانے کتنے عرصے سے شاندار زندگی گزار رہا تھا، لیکن اس کے بعد اس کا انجام۔ ہاں نیولس، ہر شخص قوت حاصل کر لینے کے بعد یہ سوچ لیتا ہے کہ وہ ناقابل تسخیر ہے اور اب اس کا مقابل اس کا کوئی ثانی نہیں، لیکن اس کے بعد اسے غیر یقینی حالات سے واسطہ پڑتا ہے کہ اس کی تمام سوچ مردہ ہو جاتی ہے۔ ایگانوس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تم نے اس کی کہانی نہ سنی ہوگی، اور اس نے اپنے داماد آرمون کے خلاف جو کچھ کیا وہ کوئی جائز اور مناسب بات نہیں تھی۔ حکومت آرمون نے حاصل کی، لیکن ایگانوس نے اسے ختم کرنے کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ تعاون کیا، اور آج یہی تعاون اس کی موت بن گیا۔ ہاں یہ درست ہے کہ کوئی بھی شخص احتساب سے مبرا نہیں ہے، لیکن مجھے صرف اس بات کے لیے افسوس ہے کہ وقت پر ہم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو کیا تم اس کا ساتھ دینا چاہتے ہو؟ نہیں، یہ بات نہیں، بس وعدہ کرنے کے بعد وعدے سے انحراف ذرا افسوسناک لگا تھا۔ صرف تم ہی نہیں تھے، دوسرے لوگ بھی تھے، آخر وہ بھی تو کسی مقصد کے تحت ہی آئے ہوں گے، اور وہ سب بھی تو ہماری مانند خاموش ہو گئے۔ کیا تمہارا خیال میں ایگانوس تنہا دربار میں پہنچ گیا تھا؟ میرا خیال ہے کہ ایسا ہرگز نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ اس کے بے شمار آدمی ہوں گے، لیکن جب اس کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں تو ان لوگوں نے بھی خاموشی اختیار کی۔ بالکل ہماری مانند اور ہر سمجھدار آدمی کو ایسا ہی کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں ہمارا رویہ بالکل درست تھا۔ ہم جس انداز سے ایگانوس سے منحرف ہوئے اور وہی ہمارے لیے بہتر تھا، ورنہ نتیجہ کیا ہوتا؟ اسی جگہ ہم لوگ بھی ہوتے جہاں ایگانوس پہنچ گیا۔ کیا تمہارے خیال میں ہم تنہا اہل دربار سے مقابلہ کر سکتے تھے؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ بس تو پھر کوئی بات نہیں، ہم نے انتہائی بہتر رویہ اختیار کیا، اور اب مجھے یقین ہے کہ ہم پہلے جس انداز میں نیوسکی سے دور تھے اور اس نے ہمارے بارے میں کوئی خاص بات نہیں سوچی تھی، اب وہ اسی انداز میں سوچے گا۔ ہاں بالکل درست کہا تم نے، نیولس نے جواب دیا، لیکن اب کچھ تبدیلیاں ضرور ہوں گی۔ کیسی تبدیلیاں؟ نیولس نے پوچھا۔ مقصد یہ کہ اس سے قبل نیوسکی یا لیزل نے حکومت کے سارے معاملات ایگانوس پر چھوڑے ہوئے تھے، لیکن اب وہ خود ان ساری چیزوں کو دیکھے گا، اور اس سلسلے میں کافی رد و بدل کا امکان ہے۔ میرے ذہن میں کوئی اور بات نہیں نیولس، میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ لیزل کبڑا کچھ ایسے علوم کا ماہر ہے جن کے ذریعے وہ بہت سے کام کر سکتا ہے۔ اب تک وہ اپنی عیاش فطرت سے کام لے کر صرف عیاشی کے بارے میں سوچتا رہا، لیکن اب جب کہ وہ منظر عام پر آ چکا ہے، ظاہر ہے کہ اب وہ اپنی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے وہ سب کچھ کرے گا، جس میں اس کے لیے اپنے لوگوں کا انتخاب بھی شامل ہوگا۔ بالکل سچ کہا تم نے یولیسس، تو اس سلسلے میں کچھ زیادہ ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ لیکن کیا تم اپنی بغاوت کی کامیابی کے امکانات نظر آتے ہیں؟ کیا مطلب؟ میرے انداز میں جھنجھلاہٹ سی آ گئی۔ میرا مطلب ہے کہ تم خوف زدہ تو نہیں ہو یولیسس؟ نہیں نیولس، میں نے بھاری لہجے میں کہا، میں حکومت کے خلاف جس پیمانے پر مہم چلا چکا ہوں، کیا تم نے اس کا جائزہ نہیں لیا؟ کیا ہماری تیاریاں اتنی کمزور ہیں کہ اب تم لیزل کے بارے میں غور کرنے لگو؟ نہیں، میرے خیال میں غلطی پر ہوں، نیولس نے شرمندگی سے کہا۔ میرے دوست، یہ بغاوت کبڑے لیزل کی قوت سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، اور جس وقت لیزل میرے مقابل ہوگا تو اسے اپنے تمام علوم کے ساتھ موت کی وادیوں میں جانا پڑے گا۔ میرے لہجے میں ایسی گراہٹ تھی کہ نیولس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور اس نے کہا، مجھ سے واقعی غلطی ہوئی، میں نے تمہارے جذبات کی توہین کی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس بات پر یقین رکھو کہ شکست نیوسکی یا لیزل کا مقدر بن چکی ہے۔ نیولس کے چہرے سے تردد دور ہو گیا۔ ساری باتوں کے باوجود کس قدر معصوم انسان تھا۔
बहरहाल नाकाबिले एतबार नहीं था। हम लोग वापस न्यूलस के मकाम पर पहुंच गए। एगानोस की मौत की इतला कारगिस में फैल चुकी थी। तो नीसा दौड़ती हुई हमारे पास आई थी। क्या ये हकीकत है यूलिसस? क्या ये सच है? हाँ, न्यूलस ने जवाब दिया। और क्या मैं ये ना समझूं कि ये यूलिसस और न्यूलस की महम के सिलसिले की पहली कड़ी है? ज़हीन लड़की ने कहा और न्यूलस उसे तअज्जुब से देखने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? उसने तोनीसा को घूरते हुए कहा। मैं दिल की बात नहीं मानती, लेकिन मेरा जहन ये बात कहता है कि न्यूस्की की हुकूमत का पहला सतून हिलाने वाले तुम लोग हो। तुम्हें एगानोस की मुती मौत की खुशी हुई है? हाँ, वो न्यूस्की का तख्लीक़कार था और बिल आखिर फ़नकार को उसके फ़न ने शिकस्त दे दी और ये मंसूबा शायद किसी बड़े फ़नकार की तख्लीक है। तुम्हारी बहन तुमसे ज़्यादा ज़हीन है न्यूलस। मेरा ख्याल है कि तुम ज़रूरी मामलात में इससे मशवरा ले लिया करो। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ न्यूलस। न्यूलस के बाप ने किसी कदर संजीदगी से कहा। क्या बाबा? न्यूलस ने पूछा। तुम इसको मेरी हमाकत तो ना समझोगे? नहीं बाबा, आप ज़हीन और ज़ैरक हैं, न्यूलस ने एहतराम से कहा। न्यूलस का बाप थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला। ना जाने क्यों जब मैं आराम करने के लिए लेटता हूँ तो मेरे कानों में अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगती हैं। कैसी आवाज़ें? ज़ैर ज़मीन हल्के हल्के धमाके होते हैं और कभी कभी ये धमाके शदीद भी हो जाते हैं। मैंने उन्हें अपना वहम समझकर किसी को नहीं बताया, लेकिन अब तो हर वक्त ये आवाज़ें गूंजती रहती हैं। ओहो! और न्यूलस के चेहरे पर अजीब से तासरात नज़र आए और फिर वो उसी जगह ज़मीन पर लेट गया और उसने ज़मीन से कान लगा दिए थे। तब वो पुरजोश लहजे में बोला, यूलिसस सुनो, ये आवाज़ें सुनो। और अब तो ये बिल्कुल करीब महसूस होने लगी हैं। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है न्यूलस? लेकिन इतनी जल्दी? वाकई इतनी जल्द तो मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरे साथियों की कारकर्दगी बेमिसाल रही है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और दूसरे तअज्जुब से हमें देखने लगे। क्या तुम इन आवाज़ों से वाकिफ़ हो न्यूलस? न्यूलस के बाप ने पूछा। हाँ, ये आवाज़ें कारगिस की ज़िंदगी में नया बाब खोलेंगी। ये आवाज़ें न्यूस्की के लिए मौत की आवाज़ें साबित होंगी, न्यूलस ने पुरजोश लहजे में कहा। लेकिन किसी के समझ में कोई बात नहीं आई। तब मैंने न्यूलस के बाप और उसकी पुरजोश बहन तोनीसा को उसके बारे में बताया और वो दंग रह गए। न्यूसा के चेहरे पर तो मसरत की सुर्खी फूट रही थी और वह पुरजोश लहजे में बोली, आह, मैं अपनी खुशी का इजहार अल्फाज में नहीं कर सकती। मेरे पुराने ख्वाब पूरे हो रहे हैं। मैंने अक्सर ख्वाब देखे हैं कि मैं न्यूस्की के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और न्यूस्की ने आखिर मेरे हाथों शिकस्त खाई। ये ख्वाब अब पूरे होंगे। कारगिस में मेरा ऐसा घर होगा जहाँ से न्यूस्की के ख़िलाफ़ पहली आवाज़ उठेगी। तोनीसा खुश होती रही। आवाज़ें अब जितनी करीब हो रही थी और उनसे अंदाज़ा होता था कि यह काम अब बहुत मुख्तसर रह गया है और बहुत जल्द मेरी अपने दोस्तों से मुलाकात होने वाली है। चुनाचा हमने मखसूस लोगों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया और इनका इंतज़ार करने लगे। मैंने जिस अंदाज में कैदियों को मुनज़्ज़म कर लिया वो नाकाबिल यकीन था। सुरंगों की खुदाई में पूरी रस्तगाह जाती थी और ऐसे इंतज़ामात होते थे कि ज़रूरत की ताज़ा चीज़ें दूर दराज इलाके से उन तक पहुंचती रहीं और हर जगह ऐसा ही होता था। रैशी गन अब एक माहर संग तलाश बन गया था। चुनाचा उसे दिए गए नक्शे के मुताबिक न्यूलस के मकान की अकबी सिबत में पहला सुराख हुआ और हम उस जगह से दूर हट गए। फिर सुराख कुशादा होता चला गया और यहाँ तक कि उसे रेशी गन का चेहरा झांकता नजर आया और उसने मुस्कुराकर हमें देखा और फिर इत्मीनान से बाहर निकल आया। हम सब उसकी तरफ दौड़ पड़े थे और रैशी गुन बड़े खलूस से एक एक से गले मिला और हमने उसकी कामयाब कोशिश पर उसे मुबारकबादें दी। रैशी गन ने हमें सुरंग देखने की दावत दी और मैं तो खैर उसकी कारकर्दगी का मोतरफ था, लेकिन दूसरे लोग उस सुरंग को देखकर शशदर रह गए जिनमें ऊपर तक सीढ़ियां तराशी हुई थीं। और उसके बाद हम लोगों को लेकर अंदरूनी कमरों में आ गए तो नीसा बागियों के सामने बिछी जा रही थी और वो बेहद मसरूर थी। खाने पीने से फरागत हासिल करने के बाद रैशी गन ने मुझसे सुरंग में चलने की फरमाइश की और मैंने दूर तक उस सुरंग को देखा। हर लिहाज से मुकम्मल थी, इतनी कुशादा और साफ के 2 घोड़े आसानी घोड़सवारों समेत गुजर सकें और उसके अलावा उसमें देगर सहूलतें भी थी। लेकिन तोनीसा ये जानकर दम खुद रह गई कि मैं उस पूरी बगावत का सरगना हूँ और वह मुझसे बेहद मुतासर हुई।
फिर हम आराम के औकात में हम सर जोड़ कर बैठ गए और मैंने रैशीगन को एगानोस की मौत की इतला दी तो रैशीगन बहुत खुश हुआ, लेकिन न्यूस्की की शख्सियत जानकर वो भी परेशान हो गया था। फिर अब हमारे लिए क्या हुक्म है यूलिसिस? अपनी तमाम तरकुवत कारगिस के नज़दीक ले आओ, सुरंग से आमदोरफ़त जारी रखो और दूसरे रास्ते फ़िलहाल बंद कर दो, मैंने मशवरा दिया। ठीक है, रैशीगन बोला। और फिर मैंने न्यूलस से कहा कि मैं अब जल्द अज जल्द काम शुरू कर देना चाहता हूँ। बेशक, अब इंतज़ार किस बात का? दरअसल इस सिलसिले में फ़िलहाल मैं चालाकी से काम लूँगा, यानी कुछ इस तरह के दो जानबाज एगानोस की मौत पर एहतजाज करेंगे और न्यूस्की पर हमला कर देंगे। हमें उन दोनों के फ़रार का बंदोबस्त करना होगा। तुम्हारा जहन कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है यूलिसिस? बगावत के आगाज़ के लिए इससे उम्दा तरकीब और कोई नहीं हो सकती, लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुम इस अंदाज़े में कैसे सोचते हो। मैं न्यूलिस की हैरानी पर कोई तबसरा नहीं कर सकता था। अब मैं उसे क्या बताता कि मैं वो नहीं हूँ जो वो समझ रहा है। मैं तो हज़ारों साल की दुनिया के बाद का इंसान हूँ और इस तरह इन दिलचस्प मामलात में मुलव्वस हो गया हूँ कि कोई ख्वाबों में भी ना सोच सके। न्यूलिस मेरी तजवीज़ पर बहुत पुरजोश था। उसने कहा कि हाँ, लेकिन हमें उनकी हिफाजत का वाकई मुकम्मल बंदोबस्त करना होगा। ये बताओ कि किस तरह करोगे? दरबार से बाहर हिफाजती दस्ता तैनात होता है, हाँ, और दरबार आम में किसी के दाखिले पर पाबंदी नहीं। बिल्कुल ठीक। इसी तरह हमारे 10-12 जानबाज दरबार में मसला मौजूद होंगे और हमारे दोनों आदमी एहतजाज और हमला करके फ़रार होने की कोशिश करेंगे। बाहर हिफाजती दस्ते के साथ हमारे जवानों की खासी तादाद होगी। ये दूसरी बात है कि वो भी बज़ाहिर हिफाजती दस्ते के साथ होंगे, जो दरअसल दोनों को फ़रार होने में मदद देगा। अगर दरबार के अंदर ही वो फंस जाते हैं तो अंदर मौजूद लोग हमला आवर होकर उन्हें बाहर निकलने में मदद देंगे। उन्हें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा और उसके बाद शहर में हंगामे होंगे। मुमकिन है कि न्यूलिस हमें इतने बड़े पैमाने पर कोशिश ना करनी पड़े जितनी हमने तैयारियां की है। हाँ, बशर्ते कि हमारी कोई चाल कामयाब हो जाए तो। मुझे यही नज़र आ रहा है। खैर, इन कैदियों को किसी तरह मुतमिन करना भी था। हम न्यूस्की पर काबू भी पा लेते, तब भी हमें कारगिस के इंतज़ामी अमूर के लिए मुंतज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी और ये लोग उस वक़्त तक काम करेंगे। बिल्कुल ठीक। और इस तरह सारे मसले हल हो गए और दूसरे दिन न्यूस्की के दरबार में तीनों, यानी मैं, यूलिसिस और रैशीगन मौजूद थे। पुरहैबत गोरिल्ला तख्त पर बैठा था और उसका तर्जुमान उसके नज़दीक खड़ा मुकदमात पेश कर रहा था। तब हमारे मुकर्रर किए हुए दोनों जवान अंदर दाखिल हुए और उनके अंदाज में जार ही थी और दरबारी अदाब के ख़िलाफ़ आगे बढ़कर न्यूस्की के बिल्कुल सामने पहुंच गए। सब लोग उनकी तरफ मतवज्जा हो गए। संग दिल शैन का न्यूस्की, तूने कदीम हुक्मरान एगानोस को जिस तरह कत्ल किया है वो तेरी ज़िंदगी की बदतरीन मसाल है। उसके अलावा तेरी चीरा दस्तियों ने कारगिस के माहौल को मायूसी की गारों में यूं धकेल दिया है कि कोई भी खुद को महफूज नहीं समझता। हमें एगानोस की मौत का बदला चाहिए। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? न्यूस्की के तर्जमान ने पूछा। बदला चाहते हैं, हम बदला लेंगे न्यूस्की से, उन्होंने कहा और फुर्ती से 2 खंजर न्यूस्की पर फेंक दिए कि अहले दरबार दंग रह गए। दूसरे ही लम्हे दरबार में हंगामा हो गया। लोग चारों तरफ से उन दोनों जवानों पर टूट पड़े और उन्होंने तलवारें निकाल ली, लेकिन दरबार में पहले से पोशीदा लोगों ने हमला आवरों को संभाल लिया और गर्दनें अलग होने लगीं। दोनों जवान निकल भागने में कामयाब हो गए, लेकिन मैंने देखा कि न्यूस्की अब अपनी जगह खड़ा हो गया था। खंजरों की कारकर्दगी उस पर बेअसर रही। वो इतना तना हुआ खड़ा था कि दरबार का हंगामा देख रहा था, लेकिन फिर बाहर भी हंगामा हो गया। बाहर वालों ने इतनी तेज़ी से हमला किया कि पूरे दस्ते का सफाया हो गया और वो अंदर घुस आए। बेशुमार दरबारियों को कत्ल कर दिया गया और फिर सब फरार होने में कामयाब हो गए। हमने भी दिखावे की जंग की थी और जो अपने लोगों के साथ थी, सिर्फ इसलिए कि न्यूस्की के साथ आप भी अब भी शामिल रहें। लेकिन न्यूस्की अब भी पुरसकून खड़ा था और उसके अंदाज में कोई परेशानी नहीं थी और उसकी गहरी और खौफनाक आंखें यूं लाशों को देख रही थी जैसे उनकी कोई हैसियत उसकी निगाहों में ना हो। और फिर उसने जिंदा लोगों की जानब देखा और ये उसके बाद अपने तर्जमान की तरफ। तर्जमान न्यूस्की को देखता रहा, फिर बोला, बच जाने वालों, न्यूस्की का ख्याल है कि यह वाक़या किसी वक्ती जोश का नतीजा नहीं है बल्कि बगावत का आगाज़ है जिसकी खबरें बहुत अरसे से सुनी जा रही थी और शहनशाह न्यूस्की बहुत जल्द अब इस सिलसिले में अपने अमल का इजहार करेंगे।
اس اعلان کے بعد دربار برخاست ہو گیا۔ میں اور نیولس محل میں ہی تھے، البتہ ریشی گن کو ہم نے واپس بھیج دیا تھا اور اسے کچھ ضروری ہدایات بھی دے دیں۔ محل میں کوئی خاص بات نہیں معلوم ہوئی، سوائے اس کے کہ نیوز کی اپنے آرام گاہ میں بند ہے اور اس کے پاس صرف چند مخصوص افراد رہ گئے تھے۔ تب وقت پر دوسرا دربار ہوا اور آج ترجمان نے ایک اور اعلان کیا، اور اس دن ہمارا کوئی منصوبہ نہیں تھا، اس لیے دربار میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ ترجمان نے کہا، کارگس کے نمائندوں، جو واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ بغاوت کا آغاز ہے جس کے لیے ایگانوس کی موت کا سہارا لیا گیا۔ ان لوگوں کا تعلق ایگانوس کے ہمدردوں سے نہیں تھا، لیکن تمہارا حکمران، تمہارا نیوس کی معمولی قوت نہیں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ایگانوس اصل حکمران ہے اور نیوسکی صرف ایک جانور، لیکن یہ بھولے ہوئے لوگ نیوسکی کی قوتوں سے واقف نہیں تھے۔ ہمارا حکمران با علم ہے اور اسے کے احکامات علم و دانش پر مبنی ہوتے ہیں اور اس کا پوشیدہ علم بے حد عظیم ہے۔ اس کے تحت اس نے قوت گویائی حاصل کر لی تاکہ تم سے تمہاری زبان میں بات کرے، سو اب تم اپنے شہنشاہ کی آواز سنو گے۔ ترجمان خاموش ہو گیا۔ تب ایک غیر انسانی آواز انسانی الفاظ لیے نمودار ہوئی، ہاں میں حکمران ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ میرے اندر کون کون سی قوتیں پوشیدہ ہیں۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ میری والدہ ارکاشا نے مجھے جانور کی شکل میں کیوں جنم دیا، لیکن میں صرف یہ جانتا ہوں کہ میں جو سوچتا ہوں وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ تو سنو کارگس والو، آج سے تم میرے احکامات میری زبانی سنو گے۔ میں نے اپنے علم سے گویائی حاصل کر لی ہے۔ باغیوں کا ایک گروہ کارگس میں داخل ہو گیا ہے اور کارگس والوں کو ان کی سرکوبی کرنا ہے۔ میں ان کے لیے بہتر انتظامات کروں گا۔ لوگ دانتوں میں انگلیاں دبا کر بیٹھ گئے۔ خیر، اس کے بعد یہ خبر پورے کارگس میں پھیل گئی کہ نیوسکی نے اپنے علم کی قوت سے انسانی آواز حاصل کر لی، لیکن دوسری طرف ہم لوگوں کی کوشش بھی کامیاب رہی، یعنی ہم نے ایگانوس کے حمایتوں کی ہمدردی حاصل کر لی اور بے شمار لوگ باغیوں کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ اور اس کے بعد ایک مخصوص وقت پر باغیوں کی ایک بڑی تعداد باہر نکل آئی اور محل پر حملہ آور ہوئی، لیکن محل سے سخت مدافعت کی گئی۔ نہ جانے کہاں سے انسان آ گئے تھے اور پوری طرح ہتھیاروں سے لیس تھے۔ وہ باغیوں کی تعداد بے شمار تھی اور ان کے پاس وہ عمدہ ذرائع تھے اور میں ان کی قیادت کر رہا تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ نیوسکی کے ہمدرد فولادی بدن رکھتے تھے اور وہ قتل ہی نہیں ہوتے تھے، جبکہ ان کا ہر وار باغیوں پر کامیاب ہوتا، اور اس صورتحال سے کافی سنگینی کا احساس ہوا۔ ہم نے اس خوفناک ہونے کا دل سے اعتراف کیا۔ اس طرح تو اس کے جادو کی قوت سے ہمیں نقصان عظیم ہو رہا ہے، اور اگر ہم اپنے لوگوں کو اس طرح قربان کرتے رہے تو آخر باقیوں کی تعداد ختم ہو جائے گی۔ ہاں، میں اس سلسلے میں فکر مند ہوں، میں نے کہا، لیکن ہمیں اپنا طریقہ کار بدلنا ہوگا اور ایک ایسی ضرب ان پر لگانی ہوگی جو نیوسکی کو نقصان پہنچائے۔ اس طرح تو ہمیں اپنے مقصد میں کوئی کامیابی نہیں ہوگی۔ میں بہت جلد کوئی منصوبہ پیش کرتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ ہمارے ساتھی بھی بد دل ہو گئے تھے کیونکہ مدافعت کرنے والوں کی تعداد کسی طور کم نہیں تھی، اور ان کا خیال تھا کہ وہ ان میں سے ایک بھی شخص کو قتل نہیں کر سکتے، جو اس طرح ان میں دہشت پھیلتی جا رہی ہے۔ گویا ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ بھی زائل ہو رہا ہے، اور لوگ نیوسکی کے آدمیوں سے خوف زدہ ہونے لگے۔ کیا اس کا اظہار کیا گیا ہے؟ کھل کر کہنے لگے ہیں اب تو۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تب میں نے دوسرے انداز میں سوچا۔ میں جانتا تھا کہ نیوسکی کون ہے۔ کوروتی مجھے اس کی اصلیت بتا چکی تھی، کبڑا گوتم بنسالی جو ہمیشہ تاریخ میں اپنا پاؤں اڑا دیتا تھا اور اس طرح کی کہانیاں ترتیب دیتا تھا کہ انسانی ذہن کو کسی طور یقین نہ آئے۔ میں اس کتاب کے ذریعے مہابھارت کے دور میں پہنچا تھا، اور اسی کتاب کے اندر میں اب قدیم یونان کی تاریخ سے گزر رہا تھا۔ ایک اہم اور کارآمد کردار کی حیثیت سے واقعی دنیا میں کسی مورخ نے تاریخ لکھتے ہوئے ایسے حالات کا سامنا نہیں کیا ہوگا کہ تاریخ خود اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر جائے۔ زندہ صدیاں اگر تکمیل کو پہنچیں تو در حقیقت وہ ہسٹری کی کائنات میں سب سے زیادہ مستند کتاب ہوگی، لیکن دیکھنا یہ تھا کہ اس عجیب سے عمل کا انداز کیسا ہوگا۔ گوتم بھنسالی کی قوتوں نے اسے نیوسکی بنا دیا، اور لگتا یہ تھا کہ وہ کوروتی پر حاوی ہو گیا ہے، اور ارکاشا کی حیثیت سے کوروتی اس کی ستم ظریفیوں کا شکار ہو رہی ہے۔ اب کیا کرنا ہوگا، یہ بات میرے دل میں تھی۔ تو نیسا نے میرے قریب آنے کی کوشش کی۔ یہ خوش و خرم لڑکی باغیوں کی شکست سے اداسی میں ڈوب گئی تھی، اور اس وقت میں تنہا باغ کے گوشے میں تھا کہ وہ میرے نزدیک آ گئی۔ یولیسس، اس نے مجھے آواز دی اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے تو نیسا؟
क्या बागियों को शिकस्त होगी यूलिसस? उसने दर्द भरे लहजे में पूछा। तब मैंने कहा, ये फैसला तुमने किस तरह किया? हालात यही बता रहे हैं। नहीं, हालात अभी हमारे इतने खिलाफ नहीं हैं। तुम खुद भी मुतमईन नहीं नज़र आते यूलिसस। बागियों को मुकम्मल शिकस्त हो रही है और किसी भी जगह वो कामयाब नहीं हो रहे। हाँ, ये सोच है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आइंदा भी ऐसा होता रहेगा। मगर मुझे मायूसी महसूस हो रही है। तुमने बड़ा कदम उठाया है। अफसोस हमें न्यूज़ की जैसी जालिम हुक्मरान के हाथों शिकस्त हो गई। तनीसा की आंखों में आंसू लड़ रहे थे। एक बात बताओ तनीसा, क्या तुम्हें न्यूज़की से ज़ाती तौर पर नफ़रत है? शदीद। उसकी वजह है क्या? वो मेरे सुनहरी वतन की पेशानी पर दाग है। वो काबिल नफ़रत है। उसके दौर में कोई औरत महफूज नहीं है और कभी वो औरत मैं भी हो सकती हूँ। उसके अलावा मेरे ख्याल में ये वजह काफ़ी है। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। बागियों की सरगर्मियाँ जारी थी। दूसरी तरफ न्यूज़की की हिम्मत बढ़ती जा रही थी और वो बागियों को शिकस्त देकर हौसलामंद हो गया था। उसने लड़ाई कारगस में महदूद कर दी। फिर मुझे इतला मिली कि न्यूज़की के सिपाही अब कारगस के चप्पे चप्पे में फैल गए थे और बागियों को कत्ल कर रहे थे। मेरे जहन में चिंगारियां भर गईं। मैंने सोचा कि अपनी शख्सियत को दरबार तक महदूद रखने से कोई फ़ायदा नहीं। अब मुझे खुलकर मैदान में उतरना होगा। फिर जब मैं दरबार में जा रहा था तो मैंने बहुत से घरों को नज़र आतश होते देखा जिनमें आग लगी हुई थी। फिर वो घर नज़र आए जो एगानोस के हामियों के थे। वो बागियों की मदद कर रहे थे। उसके अलावा मैंने गली कूचों में बागियों की बेशुमार लाशें देखी और मेरा खून खौल उठा। ये तो गलत हुआ। खैर, मैं दरबार में पहुंच गया। ये जंगी दरबार था और अब न्यूज़की खुलकर उस दरबार में अपनी बातें कर रहा था और उसकी गैर इंसानी आवाज़ उभरी। मैं इस बगावत के सरगना की तलाश में हूँ। मैं चाहता हूँ कि बागियों के नुमाइंदों को तलब करूँ और उनसे पूछूँ कि उनकी क़यादत कौन कर रहा है। उनका सरगना सामने आ गया तो क्या होगा? किसी ने सवाल किया। मैं उससे पूछूंगा कि वो क्या चाहता है। मैं ये तवील जंग बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि मेरे मशागल मुतासर हो रहे हैं। फिर अब क्या करना चाहिए? तुमने देखा कि मेरे आदमी बागियों को हलाक कर रहे हैं। वो खुद हलाक नहीं हो सकते, इसलिए जितने लोग जान देना चाहें मेरा क्या बिगड़ेगा? ये खबर बागियों को दी जाए, ज़रूरी है। फिर मुझसे रहा ना गया और मैंने आगे बढ़कर कहा, बागियों की क़यादत मैं कर रहा हूँ। मेरे इन अल्फाज ने उन लोगों को दंग कर दिया और सब हैरान रह गए। ज़ाहिर है कि उसके बाद क्या होना चाहिए था। मुझे गिरफ़्तार कर लिया गया और एक ज़बरदस्त तय खाने में कैद कर दिया गया। ये सब कुछ मैंने जज्बाती तौर पर किया था, लेकिन समझ में नहीं आया था कि अब मेरा क्या होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल मेरा ये ज़मीन दोस्त तय खाना बहुत पुरअसरार था और जिस रात मैं वहाँ कैद हुआ उसी रात को मैंने अरकाशा को अंदर दाखिल होते हुए देखा। अरकाशा एक खूबसूरत लिबास में मेरे सामने आ गई और उस वक़्त वो बेमिसाल हुस्न की मालिक थी। किस तरह कैद खाने में पहुंची ये मुझे नहीं अंदाज़ा, क्योंकि कैद खाने के सिपाही बाहर नज़र आ रहे थे। अरकाशा, मैंने उसे पुकारा तो वह मुस्कुराते हुए मेरे करीब आ गई। फिर बोली, नहीं कोरोती, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैंने तुम्हें उसी वक्त पहचान लिया था जब न्यूज़की तुम्हारे ऊपर दस्तराजी कर रहा था। हाँ, ये कहानी जिस दौर की है और उसके बारे में तुमने अंदाज़ा लगा लिया। क्या कहते हैं, यूनान के इस दिलचस्प और दिलकश दौर के बारे में तुम्हें यह भी पता चल गया होगा कि कौन से दौर में यूनान कैसे कैसे हालात से गुजरा, और ये सुनकर जिस बात की उसकी तफसील तुम्हारे इल्म में आ चुकी है। मेरा सर चकराने लगा। मैंने उसे कहा, लेकिन बहुत सी बातें काबिल गौर हैं करोती। क्या? जैसा कि साबित हुआ कि जैसा मैंने देखा और मुझे इल्म हुआ कि वो गौतम भंसाली है, वही कुबड़ा जो मंदिरों में घंटे बजाता था और जो तुमसे अज़हारे इश्क करता था। ज़रा गौर करो, सोचो ज़रा इसके बारे में कि ये बात तुम्हारे इल्म में है कि सदियों से, हज़ारों साल से वो अपनी मोहब्बत के गीत गाता है, यहाँ तक कि वो मेरा ताक़ुब करता हुआ तुम्हारे दौर तक भी पहुँच गया और फिर खुद उसने तुम्हें अपने बारे में सारी तफसीलात बताई। वो कब और कहाँ किस अंदाज में मेरे सर पर मुसल्लत हो रहा है तुमने देख लिया। लेकिन मुझे एक बात बताओ करोती। हाँ, पूछूं।
न्यूज़की की हैसियत से वह तुम्हारे जिस्म को नोचता रहा। क्या तुमने उसकी मदाफ़त नहीं की? और मैंने ये भी देखा कि वो कत्ल होता था और फिर ज़िंदा हो जाता था। तुम्हारे इल्म में सारी तफसील मौजूद है। उसने अमृत जल का वो हिस्सा पी लिया था जो उस बर्तन में बचा रह गया था, और उसके बाद उसने हज़ारों पुरअसरार अलूम सीखे और हर दौर में उसने अपने अलूम से काम लिया। लेकिन हाँ, एक बात तुम्हें मानना होगी कि वह बदबख्त अगर इस कदर मकरू ना होता और इतना बुरा ना लगता तो ऐसा मोहब्बत करने वाला शायद रूए ज़मीन पर किसी खुश नसीब को दूसरा ना मिले। उसने जो भी सोचा और जब भी सोचा मुझे सामने रख कर सोचा और मेरे ही करीब आने की कोशिश करता रहा। गोया उसकी ज़िंदगी का मकसद उसके अलावा और कोई नहीं था कि वो मेरी कुर्बत हासिल करे। और उसने तुम्हारी कुर्बत हासिल कर ली, मैंने कहा, और वो मेरी आंखों में देखने लगी, फिर हंस पड़ी, फिर बोली, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। वो क्यों? मैंने सवाल किया। तुम्हारी आंखों में मेरे लिए एक ख़ास कैफियत मौजूद है। यानी अगर मैं ये कह देती कि हाँ, उसने मेरी कुर्बत हासिल कर ली और मेरे बदन का राजदार बन गया, तो शायद तुम्हें इस बात का बहुत दुख होता। मैंने चौंक कर अपने बारे में सोचा और दिल ही दिल में खुद पर लाहौल पड़ी। वाकई पता नहीं क्यों एक लम्हे के लिए मुझे एक रकाबत का एहसास हुआ था, जिस तरह कि मैं आपको बता चुका हूँ कि फितरी तौर पर मैं एक हुस्न परस्त इंसान हूँ। अच्छे चेहरे मुझे मुतासर करते हैं, बहुत सी कुर्बतें भी बढ़ाई हैं मैंने, लेकिन ये सदियों पुरानी रूह, ये हज़ारों साल की औरत मेरे लिए ऐसा कोई मकाम भला कैसे हासिल कर सकती है? कुरोती शायद मेरे तासरात का अंदाज़ा लगा रही थी। वो मुस्कुराकर बोली, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मुझे इस बात का जवाब दो कि तारीख़ में जहाँ भी तुम जाते हो मैं तुम्हारे करीब होती हूँ। यानी ऐसा भी हो सकता है कि मेरे बगैर अगर तुम कहीं भी जाओ तो वहाँ के मामलात में घिर जाओ और मैं तुम्हें ना मिलूँ, लेकिन मैं तुम्हारी खुशबू सूंघती हुई वहाँ तक पहुँच जाती हूँ। बाकी जहाँ तक मेरी कदामत का ताल्लुक़ है तो इस सिलसिले में मैं तुम्हें फिर कभी तफसील से बताऊँगी। और अब ये बताओ कि क्या कारगस के जंग वजदल में हिस्सा लोगे या यहाँ से वापसी का इरादा है? एक बात मैं जानना चाहता हूँ करोती। हाँ बोलो। कारगस का अंजाम न्यूज़की ज़िंदा रहेगा या ख़त्म हो जाएगा? नहीं, वो ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन रोपूश हो जाएगा। क्या मतलब? आप भी मतलब पूछोगे? तारीख़ के हर दौर में उसने किरदार इख्तियार किया और मेरे ताक़ुब में रहा, और वो अब भी मेरा ताक़ुब करेगा। अगर मैं उसके साथ रहती तो उसको कबूल कर लेती तो तुम यकीन करो वो कारगस के लिए एक बेहतरीन इंसान साबित होता, और जो कहानियाँ उनके नाम से वाबस्ता हैं मेरे कहने पर वो सब ख़त्म कर देता। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि उसने अब तक जो कुछ किया है वो सिर्फ मेरी ही जलन में किया है। क्यों ना मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ, और ये बात तो तुम्हें पता ही है कि मैं बिल्कुल इत्तफाकिया तौर पर तुम्हारी इस किताब से गुजर गया था और इस दौर में आ गया। लेकिन उन लोगों की नाकामी मुझसे नहीं देखी जा रही, ख़ास तौर से वो लड़की तोनीसा। वो किस कदर दुखी और उदास है। बागी मर रहे हैं। हाँ, बगावत ख़त्म हो जाएगी तोनीसा, और उसका भाई न्यूलस भी मारा जाएगा। यूलिसस इनके लिए कुछ नहीं कर सकेगा। तुम देख लो, चाहो तो थोड़ा सा वक्त बाकी रह गया है, और उसके बाद ये तारीख़ ख़त्म हो जाएगी और तुम्हें वापस चलना पड़ेगा। और अगर मैं वापस जाना चाहूँ तो क्या तुम मेरा साथ होगी? क्या तुम ये चाहते हो? उसने लगावट से पूछा, और मैं सर खुजाने लगा तो वो हंस पड़ी। ओहो छोड़ो, वापस चलते हैं, उसने कहा, और मैं हैरानी से उसे देखने लगा। एक इतना बड़ा सिलसिला चल रहा था, इतने सारे लोग, तोनीसा, न्यूलस और वह सब जो उस बगावत में मेरे अहकामात की पाबंदी कर रहे थे। एक लम्हे के लिए दिल को एक हल्का सा एहसास हुआ, अगर मैं उनके दरमियान से चला गया तो उनकी क्या कैफियत होगी। बेचारे मारे जाने वाले हैं, उन्हें हकीकत का इल्म नहीं, लेकिन मैं हकीकतों को जानता हूँ क्योंकि ये गुजरी हुई तारीख़ की कहानी है। लेकिन बहरहाल मैं उनको इस बेकसी की मौत मरते नहीं देखना चाहता, जबकि मैंने उनकी क़यादत का फ़ैसला किया था। इंसान हर हालत में अपनी बर्तरी चाहता है, तो बेहतर यही है कि मैं अपनी दुनिया में वापस लौट जाऊं। कुरोती ने मेरे चेहरे से यह अंदाज़ा लगा लिया और उसके बाद बोली, आओ। मैं खामोशी से उसके साथ आगे बढ़ गया। दिल पर एक अजीब सा बोझ तारी था। कुरोती मुझे साथ लिए हुए चलती रही और हमने बहुत तवील फासला तय किया। फिर एक अजीब सी जगह पहुँचे। थोड़े फासले पर पहाड़ों की बुलंदी से एक आबशार नीचे गिर रहा था। कुर्बो जवार का माहौल बहुत ही खूबसूरत था। फूल खिले हुए थे और हसीन सब्ज़ादार आँखों को दावते नज़ारा दे रहे थे। दरख्तों का एक ऐसा झुंड हमारे सामने आया कि मैं उसे देखकर हैरान रह गया। ये दरख्त ऊपर से घने और एक दूसरे से मिले हुए थे, जबकि उनके दरमियान नीचे काफ़ी खाली जगह बनी हुई थी। कुरोती ने हंसकर मुझे देखा, फिर बोली, कैसी जगह है?
यूँ समझ लो कि अगर इंसान कुछ ذوق हो तो सारी ज़िंदगी यहीं रहने को जी चाहे। ज़िंदगी करोती दिलकश अंदाज में हंस पड़ी, फिर बोली, आओ बैठो चलते हैं, ये जगह हमारे लिए महफूज है। मैं खुद भी इतनी तवील सफ़र तय करके थक गया था और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन लोगों को छोड़ते हुए मुझे काफ़ी दुख था, क्योंकि मैं उनके अंजाम से वाकिफ़ था। मैंने कहा, करोती, सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हमने उन्हें दिलासा देने के बाद तनहा छोड़ दिया। ज़ीशान अली, कैसे अदीब हो, कहानियों को अपनी ज़िंदगी बना लेते हो। कहानियाँ तो कहानियाँ ही होती हैं। तुम एक तारीख दान हो और मैं तुम्हें तारीख के नज़ारे करा रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम तारीख में तब्दीलियाँ पैदा कर सको। अपने जहन को वुसअत दो। जब तुम अपनी किताब मुकम्मल कर लोगे तो उसे पढ़कर खुद हंसोगे। उसका एक एक सीन तुम्हारी निगाहों के सामने होगा और तुम कहोगे कि तुमने अपनी आंखों से ऐसा देखा। हर चंद के दुनिया इस बात पर यकीन नहीं करेगी, लेकिन बड़े बड़े तारीखदान, बड़े बड़े मुहक्किक ये तस्लीम करने में हक़ बजानब होंगे कि जिस चीज़ की शनाख्त उन्होंने अपने तौर पर न जाने कैसी मुश्किलात से गुजरने के बाद तलाश की थी, तुमने कितनी चाबक दस्ती से उसे लिख मारा। खैर, मैं तुम्हें दिलासा दे रही थी, ये सोच कर कि खुद को शगुफ्ता करो, मैं ज़िंदगी के तवील दौर से गुजरी हूँ। उसमें कोई शक नहीं कि कभी कभी इस लंबी ज़िंदगी से बड़ी उकताहट होती है, लेकिन इंसान हर हाल में जीना चाहता है। तुम भी ज़िंदगी के ये चंद लम्हात खुशी से गुजारो। उसके अंदाज में एक अजीब सी वाहियत थी और मैंने चौंक कर उसे देखा। ये वो करोती नहीं थी जो मेरी तारीख में मेरा साथ दे रही थी, बल्कि ये अरकाशा की हैसियत से एक दिलकश तरीन औरत थी। हालांकि मुझे इस बात का इल्म था कि तारीख के इस दौर में वो यूनान के एक मखसूस हिस्से से ताल्लुक़ रखती थी। वो एक बड़ा किरदार बनकर रह चुकी थी, लेकिन मैंने ये देखा कि उसकी दिलकशी अब भी बेमिसाल थी। वैसे तो मेरी दुनिया में वो खासी हसीन थी, लेकिन इस वक्त पता नहीं क्यों बेहद दिलकश लगी और उसने मुस्कुराते हुए मुझे देखा। फिर बोली, अपनी दुनिया में फ़ौरन वापस चलना है। जब मैंने सारे फ़ैसले तुम पर छोड़ दिए हैं तो ये फ़ैसला भी तुम ही करोगी। कुछ वक्त आराम करते हैं। जैसा कि मैंने तुमसे कहा, ये जगह हमारे लिए बड़ी सुकून बख्श है। मैंने भी सोचा कि चलो क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा वक्त यहाँ गुजार लिया जाए। मेरे लिए कौन से मसाइल खड़े हुए थे जो मैं फ़ौरन अपनी दुनिया में वापस जाना पसंद करता। घास का ये मखमली बिस्तर बहुत ही दिलकश था, करोती ने कहा, और तुम यहाँ आराम करो, मैं आती हूँ। और फिर वह जब वापस आई तो उसके पास बहुत से अजनबी फल थे, बहुत ही खूबसूरत और बड़े दिल आवेज़। लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारी मेज़बानी है।